नमस्कार, आप देख रहे हैं ईस्टर्न स्काई मीडिया समाचार बुलेटिन के साथ मैं हूं स्वाति ढल। नरेंद्र मोदी सरकार की कैबिनेट मंत्री डॉक्टर नजमा हेपतुल्ला ने पूर्वोत्तर राज्यों के लिए विशेष राज्य के दर्जे को जरूरी बताया है। 14वें वित्त आयोग ने पूर्वोत्तर राज्यों से विशेष राज्य का दर्जा हटाने की सिफारिश की थी। पिछले कई दिनों से पूर्वोत्तर राज्यों के विशेष दर्जे को लेकर गहमागहमी जारी है। पूर्वोत्तर राज्यों के लिए विशेष राज्य का दर्जा कितना अहम है, इस पर बहस जारी है। अल्पसंख्यक मंत्री डॉक्टर नजमा हेपतुल्ला ने कहा है कि नॉर्थ ईस्ट के लिए विशेष राज्य का दर्जा बेहद अहम है और उन्हें पूरी उम्मीद है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मामले में हस्तक्षेप जरूर करेंगे। हेपतुल्ला ने कहा है कि पूर्वोत्तर राज्यों में विकास एक बड़ा मुद्दा है और ऐसे में विशेष राज्य का दर्जा काफी अहम है। States do have the issue of development because their terrain are such. It's a mountainous area, so it is very necessary that there is special consideration should be given for them. And I'm sure Mr. Narendra Modi, who understands the deficit of development, and he wants everybody to be in a inclusive in the mainstream, he will look at this issue in a very positive manner. मोदी सरकार के 1 साल पूरा होने पर डॉक्टर नजमा हेपतुल्ला ने अपनी 1 साल की जर्नी से जुड़ी कुछ बातें भी साझा की। उन्होंने बताया कि नरेंद्र मोदी के भाषण और घोषणा पत्र के माध्यम से उन्होंने ये समझा था कि उनके मंत्रालय को किन चीजों पर सबसे ज्यादा फोकस करना होगा। अपने मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए अपग्रेडिंग स्किल्स एंड ट्रेनिंग इन प्रिजर्वेशन ऑफ ट्रेडिशनल आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स ऑफ माइनॉरिटीज पर बोलते हुए डॉक्टर नजमा ने कहा कि ये प्रोग्राम उनके लिए काफी अहम है। इससे देश भर के क्राफ्टमैन्स को कई अवसर मिलेंगे। I went through the manifesto to see what is the focus. The focus, and also I had the focus from Narendra Modi ji's speeches, that he wants inclusive development, sabka saath, sabka vikas. So between his commitment and the manifesto, the focus is on the backwardness in education and economic, and then bringing them together for a social upliftment, inclusiveness. For an economic inclusiveness and job creation, I'm focusing on skill development and then entrepreneurship, so they get jobs. When you talk about the Ustad scheme, which was announced, that scheme is very ambitious because in this country, different regions have got different minorities who are expert in their own arts and crafts. There are a lot of craftsmen in Northeast. There are a lot of craftsmen in UP, Bihar, West Bengal, Madhya Pradesh, Rajasthan, Kashmir, and every other place. But Northeast has got its own craftsmen, and when my program is inclusive of them, so whatever program we do for upliftment of these craftsmen, giving them opportunities to linking them to the market, giving them exposure to international market, I think we will be able to do a lot of work for the Northeast through my Ustad scheme. वहीं मेघालय में तुरा से सांसद पीए संगमा ने बताया कि नॉर्थ ईस्ट की एमपी फोरम ने एक डेलीगेशन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूर्वोत्तर राज्यों में विशेष राज्य के दर्जे को बरकरार रखने की मांग की है। North East MPs Forum had already met the Prime Minister in a delegation, and we have demanded that it should continue. We have also pointed out that some of the schemes of the central government, which was given in lieu of the exemption of Panchayati Raj in the tribal areas, are also being stopped, like backward area special grant, BRGF. So that also should be revived, it should be stopped. Then we are happy that we told the Prime Minister, we are happy that from Look East, he has started Act East policy, which is a welcome thing. So let us see how it goes. मोदी सरकार के 1 साल पर बोलते हुए संगमा ने कहा कि आप किसी भी सरकार को 1 साल में नहीं परख सकते, इसके लिए समय चाहिए। संगमा ने कहा कि बदलता भारत सही दिशा में है, इसमें कोई संदेह नहीं है। Performance of any government in 1 year, 1 year is too short a period. Basically, what is important is the direction, what is important is the policy, what is important is the vision. I think he has given enough of that. His thoughts on changing India are basically in the right direction.
but things have to be implemented, no doubt. 4 years are left. नरेंद्र मोदी सरकार का 1 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में अरुणाचल प्रदेश में भी बीजेपी ने जश्न मनाया। ईटानगर में जन संवाद का आयोजन किया गया, जहां मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित रहे केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने अरुणाचल प्रदेश को अपनी प्राथमिकता बताया। 26 मई 2014 को देश में बीजेपी की सरकार बनी थी और नरेंद्र मोदी के रूप में लोगों को नया प्रधानमंत्री मिला था। आज इस सरकार ने अपना 1 साल पूरा कर लिया है। इस उपलक्ष्य में जगह जगह रैलियां और कार्यक्रम किए जा रहे हैं। ईटानगर के सिद्धार्थ हॉल में बीजेपी ने जन संवाद के रूप में 1 साल का जश्न मनाया। इस मौके पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने तहे दिल से लोगों का धन्यवाद दिया। तो इस पूरे साल 1 साल होने पर आप लोग ने जो समर्थन दे करके अरुणाचल की जनता ने मुझे पार्लियामेंट में आपका रिप्रेजेंटेटिव हिसाब से तो इतना अच्छा मैंडेट से आप लोगों ने मुझे समर्थन दिया और मुझे एमपी बनाया, उसके लिए मैं अरुणाचल की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मुझे सेवा करने का मौका दिया। उन्होंने कहा कि अरुणाचल को लेकर हमारा रुख स्पष्ट है और हम राज्य की क्षेत्रीय अखंडता के लिए प्रतिबद्ध है। अरुणाचल प्रदेश को अपनी पहली प्राथमिकता बताते हुए रिजिजू ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश देश का सबसे महत्वपूर्ण राज्य है और पिछले 1 साल में इसके विकास और नई पहचान के लिए कई जरूरी कदम उठाए गए हैं। राज्य सरकार पर कटाक्ष करते हुए रिजिजू ने कहा कि जब तक राज्य सरकार सही ढंग से योजनाओं को राज्य में लागू नहीं करती, तब तक केंद्र सरकार भी कुछ नहीं कर सकती है। अरुणाचल प्रदेश का जनता का सेवा और केंद्र में बैठ करके अरुणाचल प्रदेश के लिए लगातार सोचना, बोलना और काम करना, ये मेरा ड्यूटी है। तो मेरा काम सिर्फ अरुणाचल के लिए डेवलपमेंट लेना ही सिर्फ नहीं, डेवलपमेंट तो लाना ही है, लेकिन अरुणाचल का पहचान, हम लोग इस देश का बहुत एक इंपॉर्टेंट स्टेट है। छोटा स्टेट जरूर है, कमती पॉपुलेशन जरूर है, लेकिन हम लोग इस देश का बहुत इंपॉर्टेंट स्टेट है और इस इंपॉर्टेंट स्टेट का इज्जत हिंदुस्तान का पार्लियामेंट में अगर नहीं होगा तो ये हमारे लिए ठीक नहीं है। इसलिए हम लोगों को अगर दिल्ली में नहीं पहचानता है, हमारा जो विचार को, हमारा दुख तकलीफ को दिल्ली वाला नहीं जानता है, ये केंद्र सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अरुणाचल को पहचानता नहीं है, अरुणाचल के कोने कोने में दूर दृष्टि से बॉर्डर एरिया में क्या करना है अगर नहीं जानता है तो ये ठीक नहीं। इसलिए मेरा एक ड्यूटी ये भी है कि अरुणाचल प्रदेश का खोया हुआ इज्जत, हम लोग का ऑर्डर, हम लोग का पहचान, हम लोग का आइडेंटिटी देश और दुनिया में होना चाहिए। ये भी मेरा प्राथमिकता है कि हम जितना भी अच्छा कदम उठाने से भी जब तक स्टेट गवर्नमेंट उसको इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन नहीं करेगा, तब तक हमारा स्कीम जो है जमीन में। केंद्र सरकार द्वारा नॉर्थ ईस्ट समुदाय के लिए लाई गई परियोजनाओं का जिक्र करते हुए रिजिजू ने बताया कि कैबिनेट में शामिल होते ही सबसे पहले उन्होंने अरुणाचल प्रदेश के लोगों के लिए बेसबरुआ कमेटी का गठन किया था और स्कूल से लेकर कॉलेज तक की किताबों में अरुणाचल प्रदेश और पूरे नॉर्थ ईस्ट को जगह दिलवाई थी ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग पूर्वोत्तर राज्य को जान सके। सबसे पहले मैं अपना पोजीशन संभालने के साथ साथ मेरे सीनियर कलीग्स राजनाथ सिंह जी, प्रधानमंत्री के आशीर्वाद से सबसे पहले मैंने जो बेसबरुआ कमेटी रिपोर्ट को मैंने इम्प्लीमेंटेशन करवाया। किताब में, स्कूल का टेक्स्ट बुक्स में, चैप्टर्स में, यूनिवर्सिटी कॉलेज का किताबों में, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सोशल साइंस, तमाम जितना सब्जेक्ट है उसमें नॉर्थ ईस्ट के बारे में पोएम लिखना, कहानी लिखना, नॉर्थ ईस्ट का कल्चर के बारे में बताना, यहाँ के जनसंख्या के बारे में बताना, ये जो किताबों में चैप्टर में इंक्लूड होगा तो लोग पढ़ के मालूम होगा कि नॉर्थ ईस्ट जो हमारा 8 स्टेट है ये भी हिंदुस्तान का हिस्सा है। अपने 1 साल की उपलब्धियों को गिनाते हुए रिजिजू ने बताया कि पिछले 1 साल में पूर्वोत्तर राज्यों को लेकर अहम फैसले किए गए हैं, जिनमें मणिपुर में देश का पहला खेल विश्वविद्यालय स्थापित करना और अरुणाचल प्रदेश में फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की स्थापना करना शामिल है। इसके साथ ही अरुणाचल प्रदेश और बनारस में ट्रेनिंग के लिए नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स का मुख्यालय बनाया जाएगा। वहीं हर साल पूर्वोत्तर के 10 पुरुष और 10 महिलाओं की दिल्ली पुलिस में भर्ती भी की जाएगी, जिसके लिए पूर्वोत्तर के लोगों को कद में छूट दी जाएगी। रिजिजू ने ये जानकारी दी है कि इस 1 साल में 37 बॉर्डर पोस्ट बनाए गए हैं और कुछ महत्वपूर्ण सीमा क्षेत्रों की सुरक्षा भी बढ़ाई गई है। रिजिजू ने बताया है कि पहले विदेश से आने वाले लोगों को अरुणाचल प्रदेश घूमने के लिए बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता था,
लेकिन उन्होंने इसका हल निकाल लिया है। उन्होंने बताया है कि अब कोई भी विदेशी अरुणाचल प्रदेश के अधिकारी से परमिशन लेकर घूम सकता है। किसी को भी केंद्र सरकार से परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं है। इससे राज्य में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। मीटिंग बुलाया, मेरे अध्यक्षता में, मेरे प्रेसिडेंसी में मीटिंग बुलाया और अरुणाचल प्रदेश का डेजिग्नेटेड कुछ सर्किट में कोई भी फॉरेनर जब चाहे आ सकता है। अरुणाचल प्रदेश का ऑफिसर से सिर्फ परमिशन लेना है। दिल्ली से, सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लेने का कोई जरूरत नहीं है। अभी अरुणाचल का चाहे वो डिप्टी रेजिडेंट कमिश्नर हो, चाहे दिल्ली में बैठा है रेजिडेंट कमिश्नर हो, चाहे वो किसी को भी नॉमिनेट कर सकते हैं स्टेट गवर्नमेंट अपना मर्जी से, जब चाहे कोई भी इंसान हो दुनिया का किसी भी देश अरुणाचल में आना चाहता है तो अरुणाचल में आ सकता है। इससे यहाँ टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा और टूरिज्म जो है दुनिया का सबसे बड़ा इंडस्ट्री है, जिसमें सबसे ज्यादा रोजगार पैदा होता है। अरुणाचल में टूरिज्म का काफी संभावना है, तो इसके लिए रेस्ट्रिक्शन को दूर करने का जो इतने साल का डिमांड को मैंने 1 साल का अंदर, 1 साल क्या, मैंने 6 महीना पहले ये रिलैक्सेशन करके एक बहुत बड़ा काम को शुरू किया है। समारोह से पहले रिजिजू ने स्थानीय होटल में ऑडियो विजुअल फील्ड पब्लिसिटी विभाग की ग्रैंड फोटो एग्जीबिशन का उद्घाटन भी किया था। अरुणाचल प्रदेश के पूर्व गवर्नर लेफ्टिनेंट जनरल निर्भय शर्मा को सोमवार को पूरे मान सम्मान के साथ विदाई दी गई। विदाई समारोह में राज्यपाल ने सभी प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं देते हुए अरुणाचल प्रदेश को नंबर 1 बताया। अरुणाचल प्रदेश से जाने से पहले पूर्व राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल निर्भय शर्मा के लिए विदाई समारोह का आयोजन किया गया। सेना द्वारा उन्हें सलामी दी गई और आदर सम्मान के साथ उन्हें रवाना किया गया। जाने से पहले निर्भय शर्मा ने लोगों को शुभकामनाएं दी और प्रदेश से जुड़ी कुछ यादें भी साझा की। निर्भय शर्मा ने अरुणाचल प्रदेश को नंबर 1 कहते हुए कहा कि प्रदेश खूबसूरती का खजाना है और पर्यटन के लिहाज से यहाँ अपार संभावनाएं हैं। उन्होंने ये भी कहा कि कनेक्टिविटी और सीमा सुरक्षा चिंता का विषय है, लेकिन बहुत सी चीजों पर काम चल रहा है और आने वाले समय में प्रदेश विकास की नई सीढ़ी चढ़ेगा, जिसके बाद पर्यटन को बहुत बढ़ावा मिलेगा। My message to the people of Arunachal is that you are the best. As far as Indianness and secular values are concerned, Arunachal is number 1. Nature has given it so much that its huge potential is just waiting to be unlocked. And I think what is happening now is a very good omen. I find that as far as the state is concerned, in terms of connectivity, in terms of security, particularly development of the border area, a lot of things are in the pipeline and much more is going to happen. And once that happens, hydropower, tourism, agriculture and so on. But most significant and most heartening thing is the awakening in the civil society and the youth in particular. My message to them, because particularly the youth, is channelize your energy in a positive manner and realize your potential. Remember, you are the best. निर्भय शर्मा ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश उनके दिल के बेहद करीब है और हमेशा रहेगा। उन्होंने बताया कि वो 1980 से राज्य के साथ है और जब प्रदेश को राज्य का दर्जा दिया गया था तब भी वो राज्य के साथ थे। प्रदेश के लोगों की तारीफ करते हुए शर्मा ने कहा, यहाँ के लोग बेहद ही साधारण और प्यारे हैं और इनके द्वारा दिया गया प्यार वो हमेशा याद रखेंगे। Been associated with Arunachal since 1980s. When Arunachal got the statehood, I was here, and my bonding with the state will remain forever because I've been overwhelmed by the love and affection showered on me by everybody. They're very simple and loving people, and they react to you more from their heart than anything else. The smiling faces, I think this is something which will always be, I and my wife and my family will always remember. बता दें कि केंद्र सरकार ने उन्हें मिजोरम का राज्यपाल नियुक्त किया है, वहीं जेपी राजखोवा को अरुणाचल प्रदेश का गवर्नर नियुक्त किया गया है। मोदी सरकार के 1 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में सोमवार को दिल्ली में मेघालय की लेखिका फिदालिया टोई द्वारा लिखी गई किताब डॉन मैराथन रेस टू अच्छे दिन का विमोचन किया गया। सांसद पीए संगमा के घर आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्री डॉक्टर नजमा हेपतुल्ला ने किताब का विमोचन किया था। डॉन मैराथन रेस टू अच्छे दिन किताब में प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी के 1 साल की जर्नी को शब्दों में उतारा गया है। 1 साल के दौरान मोदी को किन परेशानियों का सामना करना पड़ा, उनकी उपलब्धियां क्या रही समेत कई बातों का जिक्र फिदालिया टॉय की किताब में किया गया है। फिदालिया टॉय मेघालय के छोटे से शहर जोवाई की रहने वाली है।
देश के राजनीतिक मामले टोई को काफी प्रभावित करते हैं। शायद यही कारण है कि उन्होंने राजनीति पर लिखने का फैसला किया। टोई का कहना है कि देश में संस्कृति, धर्म और लिंग के खिलाफ भेदभाव देखकर उन्हें कहीं न कहीं ठेस पहुंची और इसी के बाद उन्होंने लिखने का फैसला किया। टोई ने मोदी पर विश्वास जताते हुए कहा कि मोदी के अच्छे इरादों ने उन्हें मोदी पर लिखने को मजबूर कर दिया। Kitchen, the household, and then especially the peace and harmony in the nation. And I have children, 7 children. So anything happens, especially with this, I think each person, they would like to have peace and harmony. There should be peace and harmony in the nation. So when I see this discrimination against this culture, religion, gender, so that make me to write this book. Because I just hope that in India, the social and secular freedom should be there. We should not miss this out. And number 2, I see in Modi, I have high hope in him. I see in him that he is a man with a vision and a mission in politics. He has good intention, but sometimes this hungers on, as I've written in my poetry, that this hunger-ons make all these things. So that's why I write this book. फिदालिया टॉय 7 बच्चों की मां है। ऐसे में इस मुश्किल भरी राह को चुनने के लिए उन्हें कई कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ा। टोई ने कहा कि उत्तर पूर्व में हमारे जैसे लेखकों के लिए सबसे बड़ी समस्या किताब को पब्लिश करवाना है। Don't bother about whether you are good in English or not. You have ideas, write it. If you have just you know what you have, you feel strongly about, just write it. And then there are people who are good in correct your English, to get all these things. There are people there. So that's why I think that we in the north, especially in Meghalaya, I'm not from Shillong, I'm from town. So we are not just like in the cities where people are always talking, converse in English. We don't use that, but we can write. So write it. Don't bother. Just write it. What you want, just write it. That is what I want. अल्पसंख्यक मंत्री डॉक्टर नज़मा हेपतुल्ला ने फिदालिया टॉय की सराहना करते हुए कहा कि देश के लिए विकास और उन्नति की राह पर चल रहे मोदी के इस 1 साल को टॉय ने बहुत ही अच्छे शब्दों में पिरोया है। Marathon race to bring the country on the path of development and progress is very well nicely put up. And she calls it the marathon race and the dawn. And she hopes that each year she's going to write a book. It will be a kind of an assessment on the working of the Narendra Modi government. So each one of us, the book is about Narendra Modi, but we are his components from his government. So each one of us have to be very careful in performing our responsibility so that we make this marathon race of Narendra Modi a success after 5 years. वहीं मेघालय में तुरा से सांसद पीए संगमा ने भी फिदालिया टॉय की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि वो लेखिका द्वारा किए गए प्रयासों से बेहद खुश हैं। The book is about marathon race for Achhe Din, you know, and a person who is in a small town like Jowai in Jainte Hills, in a very, very small town, having watched this country, having, understood this country, having understood the politics in the country, the kind of knowledge that she has displayed in the book, nobody can say that we are out of the mainstream, So Northeast is very much in the mainstream, otherwise how one would know so much about what is happening in India and what is likely to happen. I am very happy with that. अरुणाचल प्रदेश के निर्जुली में राज्य के गृह मंत्री तांगा ब्यालिंग ने पुलिस स्टेशन का उद्घाटन किया। इससे पहले यहां पुलिस चेक पोस्ट था, जिसे पूरी तरह से पुलिस स्टेशन में तब्दील कर दिया गया है। निर्जुली में सोमवार को लोगों को नए पुलिस स्टेशन का तोहफा दिया गया।
पुलिस आउट चेक पोस्ट को तोड़कर वहां एक नया पुलिस स्टेशन बनाया गया है, जिसका उद्घाटन सोमवार को राज्य के गृह मंत्री तांगा ब्यालिंग ने डीजीपी एस नित्यानंदन, ईटानगर के एसपी और अन्य उच्च स्तर के पुलिस अधिकारियों की उपस्थिति में किया। पुलिस अधिकारियों को संबोधित करते हुए ब्यालिंग ने जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखने और कई मामलों को सुलझाने के लिए पुलिस की सराहना की और आगे भी इसी तरह से काम करने का आग्रह भी किया। लॉ एंड ऑर्डर का मामला में पुलिस हीरो होना बहुत जरूरी है। एक साल का अंदर हम देखा है हमारा कैपिटल कॉम्प्लेक्स में, नहीं बोल के डिस्ट्रिक्ट में भी हमारा पुलिस किसी स्टेट का पुलिस से कमी नहीं है। दिल्ली पुलिस भी बहुत अच्छा काम कर रहा है। कितना एक्सटॉर्शन होता है, कितना चोरी होता है, कितना धोखाई होता है, कितना किडनैपिंग होता है, एक भी केस भी तो नहीं छोड़ा है। तो अभी तक 100% अचीवमेंट है। इसके साथ ही तांगा ब्यालिंग ने जनता से भी अनुरोध किया है कि वो अपराधों को नियंत्रित करने में पुलिस का सहयोग करे। ब्यालिंग ने कहा है कि अगर जनता पुलिस का सहयोग नहीं करेगी तो शायद पुलिस कुछ नहीं कर पाएगी। पब्लिक साथ देना बहुत जरूरी है। अगर समाज साथ नहीं देगा क्या होगा? काल को लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम होते रहेगा। ईटानगर, नाहरलगुन में, अरुणाचल में किसी का एक पैर कदम रखने का झंझट आ जाएगा। इसलिए पब्लिक साथ देना बहुत जरूरी है। चोरी करने वाला, डकैत करने वाला, एक्सटॉर्शन करने वाला बीच बीच में चुप चुप के बैठा है, लेकिन आप लोग नहीं बताता है। किस लिए आप लोग नहीं बता रहा है? बताना चाहिए। आप ओपनली भी बता सकता है या सीक्रेट में भी बता सकता है। जो लोग क्रिमिनल होता है, जो लोग एक्सटॉर्शन होता है, जो लोग किडनैपिंग होता है, उसको आप बताना बहुत जरूरी है रुकाने के लिए। अगर ऐसे नहीं करेगा, पुलिस स्टेशन खोल के भी फायदा नहीं है, या डीसी बेच के भी फायदा नहीं है, ईएसी बेच के भी फायदा नहीं है। जब तक समाज अच्छा होगा तब सब कुछ ठीक होगा। जब तक समाज अच्छा नहीं होगा, सब कुछ लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम आते रहेगा। इसलिए आप लोग से रिक्वेस्ट आए, पुलिस को कोऑपरेट कीजिए, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को कोऑपरेट कीजिए। डीजीपी एस नित्यानंदन ने पुलिस अधिकारियों से आग्रह किया कि वो यातायात नियमों में सख्त अनुशासन बनाए रखें और लापरवाही बरतने वाले लोगों को बिल्कुल न बख्शें। इसके साथ ही डीजीपी ने पुलिस अधिकारियों को फटकार लगाते हुए कहा कि वो खुद भी यातायात नियमों का पालन करें और लोगों के सामने एक उदाहरण पेश करें। पुलिस आउटपोस्ट से अपग्रेड करके पुलिस स्टेशन स्टेटस में अभी ये इनॉग्रेट किया ऑनरेबल होम मिनिस्टर। पर्टिकुलरली बात किया तो ट्रैफिक में कोई भी है ना पब्लिक सेटिस्फाइड नहीं है। उसके लिए हर एक पुलिस कर्मचारी कॉन्सेंट्रेट करके काम करना पड़ेगा। फर्स्ट थिंग वी हैव टू एजुकेट द पीपल। सो वेलकमिंग एटीट्यूड। हमने भी लास्ट मीटिंग रखने में यही मीडिया का मैं रिक्वेस्ट किया था। और द सेम टाइम पब्लिक कोऑपरेशन आल्सो है ना वेरी क्रूशियल। गाड़ी पार्क करना है, पार्क तो कर रहा है, अभी तक ईयर मार्क नहीं हुआ, बट फिर भी हर एक सिटीजन का एक काम होता है कैसा ऑर्डरली पार्क करने में किसी को तकलीफ नहीं होता है। वो चीज़ थोड़ा इधर कमी है, वो भी हम फॉलो करना चाहिए। काकी यूनिफॉर्म पहनने के बाद यू शुड बी एन एग्जाम्पल टू द पब्लिक। पब्लिक आपका देख के ना सीखना चाहिए काफ़ी चीज़। हर एक मीटिंग में मैं ये इंसिस्ट करता हूँ, अभी तक सुधरा नहीं है। अभी आइंदा कोई पुलिसमैन हेलमेट बिना हेलमेट को गए तो उसका उसी आप लोग सीनियर ऑफिसर सब लोग रास्ता में जाता है आता है, सब आंख बंद करके ये ठीक है वो तो डीजी का काम है और हम तो काम नहीं है, ऐसा आप सोचे तो आई एम सॉरी। आप लोग का है ना इसका प्राइस पे करना पड़ेगा। मैं काफ़ी टाइम बोल दिया और अभी तक सुधरा नहीं है। इवन ट्रिपल राइडिंग तक जा रहा है। ये क्या हम कहाँ से ये डिसिप्लिन आए? और पब्लिक के सामने में बात करने का इसमें मुझे कोई ये नहीं है, बिकॉज एवरीबडी इज वाचिंग अस। और इसमें काफ़ी दिन हम ऐसा आंख बंद करके जाना अच्छा नहीं है। खबरों के इस अंक में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।